Good morning, students. Welcome to Bindu Tadwal Chemistry Lessons. We are doing 6 concepts of chemistry. Today we'll be doing some basics used in calculations. For example, prefixes used in the SI system. So in order to convert unit of one system to unit of another system, we can use these kinds of prefixes. So for a smaller unit, say let the unit be meter, then 1/10 of a meter, or 1 by 10 means 10 raised to power minus 1 of a meter will be called decimeter. Similarly, 1/10 of a second will be called decisecond. So the prefixes used for 1/10 is deci. Similarly, for 100th or 10 raised to power minus 2 is centi. For 10 raised to power minus 3 it's milli. For 10 raised to power minus 6 it's micro. 10 raised to power minus 9 it is nano. 10 raised to power minus 12 is pico. 10 raised to power minus 15 is femto. Minus 18 atto, and 10 raised to power minus 21 septo, and 10 raised to power minus 24 yocto. And for bigger units than a particular unit, say 10 times that unit will be called deca, 100 times hecto, 1000 times kilo, 10 raised to power 6 times mega, 10 raised to power 9 times giga, 10 raised to power 12 times tera, 10 raised to power 15 times peta, 10 raised to power 18 times exa, 10 raised to power 21 times zeta, and 10 raised to power 24 times iota. The symbols used for smaller units are in small letters: Y for yocto, Z for zepto, A for atto, F for femto, P for pico, N for nano, mu for micro, small m for milli, small c for centi, and small d for deci. Whereas for bigger units, we have bigger letters of the English alphabet. So for iota, we have capital Y, for zeta, capital Z, for exa, capital E, for beta, capital P, for tera, capital T, for giga, capital G, and for mega, capital M. For kilo, we have small k, hecto, we have small h, and for deca, we have d, a, small d, and a. Now, uncertainty in measurements. To measure uncertainty in measurements, we use significant figures. Before doing significant figures, let's do what is scientific notation. This is a method of writing a number in terms of n into 10 raised to power n. In scientific notation, any number can be represented in the form n into 10 raised to power n, where n is an exponent having positive or negative values, and capital N is a number called digit term which varies between 1.000 and 9.999. So if we have to write 232.508 in terms of scientific notation, we will bring the decimal next to the first non-zero digit here. So we have to write it as 2.32508. Now, as we had to bring the decimal to 2 places to the left, the power 2 is written next to 10. Supposing if we have to shift the decimal to the right to write it in the form of a scientific notation, then the power is placed as negative. For example, here we have to bring the decimal here, so we move 1, 2, 3, and 4 places to the right. So the answer will be 1.6 into 10 raised to power minus 4. So this is how scientific notation is written. Performing mathematical operations on numbers expressed in scientific notation, the following points are to be kept in mind. During multiplication and division, supposing we have to multiply 5.6 into 10 raised to power 5 with 6.9 into 10 raised to power 8, we will multiply the numbers amongst themselves, and for powers
if the base is same, the powers are added. So 10 raised to power 5 into 10 raised to power 8 becomes 10 raised to power 5 plus 8. So multiplying this, we get 38.64, and on adding the powers, we get 10 raised to power 13. So as we know that in scientific notation, we have to write the decimal after one digit. So we are moving the digit to the left. So the power is increased by 1. So 3.864 and 10 raised to power 14. This is the answer. Similarly, for multiplying these, 9.8 into 10 raised to power minus 2 into 2.5 into 10 raised to power minus 6. We multiply 9.8 into 2.5 and we add the powers 10 raised to power minus 2 plus minus 6. So this becomes minus 8 and this is 24.50. So we have to bring the decimal to next to 2. So we are moving it to the left. So power is increased by 1. So minus 8 plus 1 is minus 7 and 2.450 into 10 raised to power minus 7 is the answer. If we have to divide two numbers, say 2.7 into 10 raised to power minus 3 and divided by 5.5 into 10 raised to power 4. So we divide the numbers amongst themselves, and the powers can be divided by 10 raised to power minus 3 minus 10 raised to power 4. So minus 3 minus 4 becomes minus 7, and on division this answer comes out to be 0.4909. So because we have to bring the decimal here, we are moving to the right. So power is increased in negative terms. So minus 7 minus 1 becomes minus 8. Answer is 4.909 into 10 raised to power minus 8. For addition and subtraction in scientific notation, we have to first write the numbers in such a way that they have the same exponent. For example, 6.65 into 10 raised to power 4 and 8.95 into 10 raised to power 3, we'll first bring the power to 10 raised to power 4. So to bring it to 10 raised to power 4, we have to shift the decimal to the left. So we get 6.65 into 10 raised to power 4 plus 0.895 into 10 raised to power 4. Now, as the powers are same, we can take out this as common, 10 raised to power 4, and we can add these two numbers, and on adding we get this answer 7.545 into 10 raised to power 4. So for addition and subtraction, we first write the numbers in such a way that the powers are same, and then we perform the operation. So let's take another example of subtraction of two numbers. So 2.5 into 10 raised to power minus 2 minus 4.8 into 10 raised to power minus 3. We first bring the powers same. So 10 raised to power minus 3, to make it 10 raised to power minus 2, we shift the decimal to the left. And now we will subtract minus 0.48 from 2.5, and 10 raised to power minus 2, as it is present in both the terms, is taken out as common. So we get the answer 2.02 into 10 raised to power minus 2. Now talking about uncertainty in measurement, we consider significant figures of any measurement. So before understanding significant figures, let us understand what precision and accuracy is. Precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity. अगर एक पर्सन से ए ने रीडिंग ली है और उसकी रीडिंग 1.95 और 1.93 आ रही है, दो रीडिंग्स उसने ली हैं, एक्चुअल वैल्यू 2.0 है, तो ये वैल्यू काफ़ी वेरी करती है उससे, लेकिन आपस में ये दोनों वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं. तो जो वैल्यूज़ आपस में क्लोज होती हैं वो प्रिसाइज होती हैं, और जो ट्रू वैल्यूज़ के बराबर से मिलती जुलती होती हैं, उसके पास पास होती हैं, वो एक्यूरेट होती हैं. तो प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर सेम क्वांटिटी. वैल्यूज़ एक दूसरे के मिलती जुलती, एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती होनी चाहिए. और एक्यूरेसी होती है कि एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू से वो रिज़ल्ट एग्री कर रहा है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनके बीच में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये लेते हैं, ए ने रीडिंग्स ली 1.95 1.93, जबकि एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी 2.
तो ये 2 से थोड़ी कम है, काफ़ी कम है, तो लेकिन आपस में क्लोज है, तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ पे बी ने जो रीडिंग ली 1.94 जो 2 से काफ़ी डिफरेंट है और 2.05 भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी एवरेज निकल के जो है वो भी 2 के बराबर नहीं आ रही है, तो ये ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। सी ने जो वैल्यू ली 2.01 वो 2 से पास है, इसी तरह 1.99 भी 2 से पास है और इसका एवरेज 2 भी 2 वैल्यू से एग्री करता है, तो सी प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अब किसी भी नंबर में जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है, लेकिन उससे पहले वाली डिजिट्स या कैलकुलेशंस एक्यूरेट होती है। तो इन सबको मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो उतना ही ज़्यादा श्योर होता है, सर्टेन होता है और उसमें अनसर्टेनिटी कम होती है। तो डिफिनेशन क्या हुई सिग्निफिकेंट फिगर्स की? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर all the certain digits plus one uncertain digits. For example, इसमें 3 significant figures हैं जिसमें से ये uncertain है, ये certain है, तो 11 certain है और 2 uncertain है। इसकी लास्ट वाली वैल्यू प्लस 0.2 भी हो सकती है और इसमें एक ज़्यादा या एक कम भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स हम निकालते कैसे हैं? रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उस नंबर में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 285 में 3 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.25 में 2 हैं तो इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर 0 प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जैसे 3 है, इससे पहले वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे और इस कैलकुलेशन में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में कोई ज़ीरो आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर एंड में ज़ीरो हो और वो डेसिमल के राइट साइड पे हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल 0.200 में 2 के बाद वाले भी काउंट होंगे और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अदरवाइज अगर डेसिमल के बाद वाला नहीं है तब वो टर्मिनल ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल 100 में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ 100 पॉइंट है तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 100.0 में इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इन नंबर्स को हम जैसे ये वाले नंबर्स हैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 × 10⁻2 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन 1.00 में 3 होंगे। In numbers written in scientific notation, all digits are significant in the digit term. तो 4.01 में ये 3 significant figures होंगे, इसमें ये 5 1 2 3 4 significant figures होंगे। Addition and subtraction of significant figures. The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. Supposing हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ऐड तो हम नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही ऐड कर लेंगे, जहाँ डिजिट्स नहीं है वहाँ 0 अज्यूम कर लेंगे। आंसर आया हमारा 31.122, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम पे हम उतने डिजिट्स डाल सकते हैं जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले फिगर में हैं। जैसे यहाँ 3 है तो हम अप टू 3 प्लेसेस ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हैं, तो आंसर आएगा 31.1। तो जब हम आंसर रिपोर्ट करते हैं तो जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसमें भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। जैसे 2.5 × 1.25 ये आ रहा है, लेकिन हमें रिपोर्ट करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर हो जाएगा 3.1।
तो जब हम लिमिट कर रहे होते हैं रिज़ल्ट को, तो हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है नंबर को। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए जो पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए वो ये है कि अगर 1.3 2 डिजिट्स तक रिपोर्ट करना है हमको, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने वाला नंबर अगर 5 से ज़्यादा होगा तो हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। वी विल इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1, तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे 1.4। और इसी तरह अगर हमने अप टू 3 डिजिट्स इसको रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रखने हैं, 1 यहाँ तक इसको रिपोर्ट करना है, तो क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1.39। और अगर जो राइट मोस्ट डिजिट जिसको रिमूव करना है वो 5 से छोटा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, पिछले वाले डिजिट को वैसे ही लिखते हैं। तो 4.334 में 4 रिमूव करना है, ये 5 से छोटा है तो आंसर आएगा 4.33। तो और अगर राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव होना है वो 5 है, तब उस केस में हम उससे पिछले वाले नंबर को देखते हैं। अगर वो ऑड है तो 1 से इंक्रीज करके 6.4 कर देंगे, अगर वो इवन है तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे और उसको वैसे ही रहने देंगे, 6.2 रिपोर्ट करेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ के लिए ये रूल्स है। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो यूनिट्स को एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप होती है, जैसे हमने 25.6 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदलना है तो मीटर और सेंटीमीटर की रिलेशनशिप को लिख लिया। जिन यूनिट्स में बदलना है उसको हम ऊपर रखेंगे और जिन यूनिट्स को रिमूव करना है वो हम नीचे ले जाएंगे और एक तरफ 1 रख के दूसरी तरफ दोनों यूनिट्स का रिलेशन आ जाएगा। तो जैसे 1 मीटर इधर चला गया, इधर 1 रह गया, हमारे पास आया 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। ये हमारा बन गया यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि ये किसी भी क्वांटिटी जो है उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कर रहा है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। इसी को हम यूनिट फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी वैल्यू में कहीं चेंज नहीं आती है, ऐसे लगता है जैसे हमने 1 से ही उसको मल्टीप्लाई किया है। अब जब हम कन्वर्जन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यूनिट्स को इस तरीके से रखते हैं कि जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखेंगे और जिस यूनिट से कन्वर्ट करना है उसको नीचे रखेंगे। इस तरह से यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपकी डिजायर्ड यूनिट्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 25.6 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 25.6 मीटर विल बी 25.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस कन्वर्जन फैक्टर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। मीटर मीटर कट गया और हमारे पास आ गया ये मल्टीप्लाई करके 2560 सेंटीमीटर। इसी तरह 1.50 किलोमीटर क्यूब को अगर हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे को रिलेशन चाहिए। नंबर 1, लीटर जो है डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है और किलोमीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो किलोमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम मीटर क्यूब में करते हैं, फिर डेसीमीटर क्यूब में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर क्यूब मीन्स 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर इंटू 1000 इंटू 1000 मीटर। तो ये हो गया 10⁹ मीटर क्यूब और ये 1 किलोमीटर क्यूब। अब किलोमीटर क्यूब को नीचे ले गए और इधर 1 कर दिया तो ये आ गया 10⁹ मीटर क्यूब अपॉन 1 किलोमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब 1.50 किलोमीटर क्यूब जो है हो जाएगा 1.50 किलोमीटर क्यूब इंटू दिस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। किलोमीटर क्यूब कट गया, अब हमारे पास आ गया 1.50 इंटू 10⁹ मीटर क्यूब। इसको अब हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब होगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर का क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को इधर ले गए तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो अब 1.50 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब को
इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.50 इंटू 10⁹ मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गए और ये 9 इंटू 10⁻³ 10⁻9 इंटू 10⁻³ हो गया 10⁻12। तो हमारा आंसर आया 1.50 इंटू 10⁻12 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है तो ये आंसर लीटर्स में आ गया 1.50 इंटू 10⁻12 लीटर्स। तो इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.